Hello students. Now today let's start with the statistics. In that chapter number 2, right, Carl Pearson's product moment method that we have completed. Now the next method, that is Spearman's rank correlation method. Now see, when in the sum honesty, beauty, skill, mortality, proficiency, then ranks in elocution, music, dance, if etc. are given, right? For that we have to specify some rank, right? So for whenever we have to specify some rank to the given attribute, we cannot apply Carl Pearson's product moment method. Why? Because in that we do not have to compare the variables x and variable y. We have to give ranks to the variable x and variable y. For that we cannot apply that Carl Pearson's method. We have to apply for that another formula, that is r is equals to 1 minus 6 sigma d square upon n in bracket n square minus 1, right? Sigma, so whatever ranks we assign to the given variables, right, difference we find out in total, we make ये सम करेंगे तो समझ में आ जाएगा. But for Spearman rank correlation method, we have to apply this formula, r is equals to 1 minus 6 sigma d square and in bracket n square minus 1, right? Okay, so now let's move on exercise 2.3. In that, let's take first sum, that 6 companies are ranked by the 2 market analysts on the basis of their growth in the recent past. Company ABCDEF is given a rank of analyst, rank by analyst 1 and rank by analyst 2 are given. Now see here, value of variable is not given, here direct ranks are assigned. तो इसका पहले सॉल्यूशन सॉल्व करें. नाउ सी, आई हैव ऑलरेडी सॉल्व दिस सम. आप लोग ये वीडियो पॉज करके सॉल्यूशन लिख लेना. फर्स्ट ऑफ ऑल, कंपनी ABCDEF इज़ गिवन रैंक बाय एनालिस्ट 1, उसको मैंने RX दिया है. रैंक बाय एनालिस्ट 2, उसको मैंने RY दिया है. रैंक्स आर ऑलरेडी, रैंक मीन्स नंबर्स. जैसे आप लोगों को एग्ज़ाम में कैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर्स हम देते हैं, वैसा सेम यहाँ पे ये रैंक्स दिए हैं, नंबर्स दिए हैं, राइट, कि हाईएस्ट को फर्स्ट, लोवेस्ट को सेकंड, उसके लोवेस्ट को थर्ड, इस तरह से यहाँ पे ऑलरेडी रैंक्स असाइन करके ही दे दिए, हमें नहीं असाइन करना है. नाउ देन आफ्टर वी राइट डाउन फॉर्मूला, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1. तो हम पहले सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड आउट करेंगे. n मीन्स टोटल नंबर, 1 2 3 4 5 6 टोटल नंबर्स, दे आर 6. तो डी स्क्वायर फाइंड करने के लिए पहले डी फाइंड करें. डी के लिए फॉर्मूला है RX माइनस RY, डिफरेंस ऑफ फर्स्ट रैंक एंड सेकंड रैंक. तो 5 माइनस 6 माइनस 1, 2 माइनस 4 माइनस 2, 1 माइनस 3 माइनस 2, 4 2 2, 3 माइनस 1 2, 6 माइनस 5 1, राइट. और ये फिर ये डी का स्क्वायर, that becomes our sigma d square of this and its total, right. तो ये 18 आ गया. now we put up values into the formula. 1 minus 6, ये मैंने सीधा 108 लिख दिया है. यहाँ पे आएगा 6 into 18, 6 into 18 comes 108, right. फिर नीचे ये मैंने सीधा स्टेप लिख दिया है. यहाँ पे मैं लिख के I'll show that 1 minus 6 in bracket 18 upon 6 in bracket 6 square minus 1, right. इस तरह से ये, इसके बाद ये स्टेप, then simplify. now you know how to simplify the given equation. 1 minus 0.51 आ रहा है, तो r is equals to 0.49. so we can say that there is positive correlation between analyst 1 and analyst 2. वैल्यू पॉजिटिव आए तो पॉजिटिव कोरिलेशन, वैल्यू नेगेटिव आए तो नेगेटिव कोरिलेशन. बट स्टेटमेंट इज नेसेसरी टू राइट डाउन, राइट. ओके, then sum number 2, an official has ranked 9 villages of a sample on the basis of the work done in the area of Swachhata Abhiyan and Beti Bachao Abhiyan by the villagers. The ranks are given below. Now in the first column, village is given 1 to 9. Then rank for Swachhata Abhiyan is given and rank for this Abhiyan is given, right. Now here in this sum also ranks are already assigned. We do not have to assign ranks to the given variable.
So this second sum, that is also same as this first sum. So this sum is in homework. Sum number 3rd. The following information is obtained by a survey conducted by a town planning commission of a state. City A, B, C, D, E. 5 cities are given, population is given, and rate of growth is given. Now here फाइंड रैंक कोरिलेशन. अभी रैंक कोरिलेशन हम अप्लाई कभी करें, इसमें तो रैंक तो दिया नहीं, तो क्या करें. तो वेन एवर इन द सम इट इज़ गिवन दैट फाइंड द रैंक कोरिलेशन, एट दैट टाइम ओनली we apply formula of rank correlation. Otherwise if it is not specified then we apply that Karl-Pearson's method. Are you understanding what I am telling? रैंक कोरिलेशन अगर बोला हो तो ही फाइंड करने का, नहीं तो कार्ल-पियर्सन ही अप्लाई करने का. Between the population of the cities and the rate of growth of the population, right? Now let's solve this sum. मैंने टेबल बनाया है city, then x variable, y variable. Now we have to assign numbers, ranks to these cities. हाईएस्ट को हम 1 देंगे. पहले हम ये ले लें. दिस इज़ आर एक्स 57, वो हाईएस्ट है इसलिए 1. इसके बाद लोवेस्ट है 45 तो 2. इसके बाद लोवेस्ट है 18 तो 3. इसके बाद लोवेस्ट 14 तो 4 एंड लास्ट वन इज़ 5. सेम एज हियर 20 हाईएस्ट 1 एंड के बाद लोवेस्ट 15 सो सेकंड. 15 के बाद लोवेस्ट 15 के बाद लोवेस्ट 10 नहीं सॉरी 13 सो 3. इसके बाद लोवेस्ट 10 सो 4 एंड लास्ट वन दैट इज़ 5. राइट. नाउ वी फाइंड आउट डी आर एक्स माइनस आर वाई, दोनों का डिफरेंस. Then we make square of this, that becomes our d square. Total of d square, that is 6. Then we have 1 2 3 4 5 5 variables are given, so n is equals to 5. Now we write down formula. 1 minus 6 sigma d square upon n in bracket n square minus 1. वैल्यू पुट अप करके हम आंसर फाइंड आउट कर देंगे. ये भी पॉजिटिव आ रहा है, सो देयर इज़ पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन पॉपुलेशन एंड रेट ऑफ ग्रोथ. राइट. वीडियो पॉज करके आप ये सम लिख लेना. देन सम नंबर 4. द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन इज ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग अ सैम्पल ऑफ 10 स्टूडेंट्स फ्रॉम द स्टूडेंट्स ऑफ साइंस कॉलेज. मार्क्स इन मैथ्स एंड मार्क्स इन स्टैटिस्टिक्स. मार्क्स दिए है, फाइंड द रैंक कोरिलेशन कोएफिशिएंट. राइट. तो हम मार्क्स दिए है, ये रैंक्स नहीं दिए हैं, तो सेम है सम नंबर 3. फर्स्ट ऑफ ऑल वी असाइन रैंक्स. हाईएस्ट को फर्स्ट, उसके बाद लोवेस्ट को सेकंड, उसके बाद लोवेस्ट को थर्ड फोर्थ. राइट. एंड सो ऑन. यहाँ पे 10 रैंक्स तक जाएंगे. देखो बिकॉज 1 to 10 वेरिएबल्स आर गिवन. राइट. 1 to 10 स्टूडेंट्स के मार्क्स दिए हैं, तो 10 तक जाएगा. then after we find out d, then after we find out d square, and then put up into the formula and find out the answer. Now next sum number 5. From the following information of heights of husband and wife, calculate the rank correlation coefficient between their heights. Right. यहाँ पे rank correlation बोला है. Now first of all we write down the table. टेबल में मैंने x and y लिख दिया है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल रैंक फॉर x वेरिएबल, सो दैट आई हैव असाइंड आर एक्स. नाउ हाईएस्ट दैट इज़ 191, सो नंबर 1. लोवेस्ट 185, सो नंबर 2. उसके बाद लोवेस्ट 163, सो 3. उसके बाद लोवेस्ट 162, सो 4. उसके बाद लोवेस्ट 157, सो 5. उसके बाद लोवेस्ट 156, सो 6. और उसके बाद लोवेस्ट 153, so 7. Right. Now the most another method for the rank correlation, when same numbers are repeated at that time, how to assign ranks to that repeated numbers. पहले स्टार्ट करें. 157 that is highest, so 1. then second पे है 162, 162, that is repeated 2 times. Now when numbers are repeated, तो हम दोनों नंबर को सेम ही रैंक नहीं दे सकते. राइट.
तो जब भी नंबर्स रिपीटेड हो तो देर इज़ वन अनदर वर्किंग कि we have to prepare a table that ranks repeated number of repetition and its formula that m cube minus m upon 12. तो 162 है वो रैंक रिपीटेड है 2 times it is repeating. फॉर्मूला है 2 क्यूब माइनस 2 अपॉन 12. सिंप्लीफाई करो तो 0.5 आएगा. तो हम ये एक तो रैंक कौन सा जा रहा है 2, राइट. तो 2 में हम तो आ गया 0.5. Now we require this working for to put up into the formula, right. जब भी रैंक्स रिपीट होंगे एट दैट टाइम वी हैव डिफरेंट फार्मूला. तो अभी यहाँ पे क्या करें, ये 0.5 आया, इसका कुछ नहीं करेंगे, पर यहाँ पे हम क्या करेंगे 162 पहले 170 था. देन आफ्टर सो नाउ हाउ टू असाइन रैंक ओवर हियर. तो उसके लिए हम क्या करेंगे दैट 162 ये जो है दैट इज़ रिपीटेड सेकंड टाइम प्लस थर्ड टाइम, राइट. 1 के बाद ये सेकंड ही आएगा और ये थर्ड. तो 2/3 अपॉन 2 कम्स 2.5. तो हम 162 को 2.5 एंड 2.5 रैंक असाइन करेंगे. समझ में आ रहा है, राइट. 170 दैट इज़ आवर फर्स्ट नंबर. नाउ दिस इज़ सेकंड रैंक एंड दिस इज़ थर्ड रैंक, बट रैंक्स आर रिपीटिंग. तो हम क्या करेंगे इधर दिस इज़ अवर सेकंड, दिस इज़ अवर थर्ड. सो 2 + 3 अपॉन 2 करेंगे बिकॉज 2 times इट इज़ रिपीटिंग. सो 2 + 3 अपॉन 2 कम्स 2.5. सो 162 2.5 162 2.5, राइट. नाउ दिस इज़ अवर थर्ड नंबर. सो नाउ आफ्टर थर्ड फोर्थ कम्स. So after 162 lowest is 157. So now fourth. Then after 157 154. This is also 154. This is also repeating. 4 के बाद क्या आएगा ये 5 and 6. तो 157 is equals to. तो after 4th 5th and 6th rank comes. So 5th plus 6 upon 2. So that comes 5.5. See this 5.5. So we give 5.5 plus 5.5 and here also 5.5. तो 4 5 and 6 हो गया, राइट. इसके बाद क्या आएगा 7. लास्ट वन दैट इज़ 148. तो उसको 7th रैंक, राइट. समझ में आ गया. यहाँ पर रैंक किस तरह से करेंगे, जितनी बार रिपीट हो रहा है उसके रैंक डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपीटेड दैट गिवन नंबर. अभी डी फाइंड आउट कर देंगे, डी स्क्वायर कर देंगे, डी स्क्वायर का टोटल कर देंगे. अभी यहाँ पे एक और रह गया 152 दैट इज़ रिपीटिंग 2 times. फॉर्मूला में पुटअप किया 0.5 आया. इसका टोटल 0.5 plus 0.5 comes 1. दिस इज़ आवर CF. दिस CF we require for to put up into the. So whenever rank is repeating at that time there is a little bit different formula that R is equals to 1 minus 6 sigma d square plus CF upon n in bracket n square minus 1. Now this CF that is this, right. ये जो total है that is our CF. तो 6 sigma d square comes 4. तो 6 4 plus 1 upon ये 7 square minus 1. सिंप्लीफाई करके R is equals to 0.9 आ गया, राइट. दिस इज़ अगेन एन इम्पॉर्टेंट मेथड. नाउ सम नंबर 6 उसमें भी रैंक रिपीट हो रहे हैं. सो सम नंबर 6 दैट इज़ इन होमवर्क. नाउ सम नंबर 7. 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges and the sum of their square of differences in the ranks is found to be 216. Find rank correlation coefficient. Now see 10 contestants are ranked in a beauty contest by 2 judges. So 10 contestants, that means n is equals to 10 and sum of squares of differences, that means sigma d square, that is 214 and rank correlation coefficient. तो इसमें तो सीधी वैल्यूज दे ही दी है दैट n is equals to 10 sigma d square is equals to 214. So this is also in homework. Now sum number 8. The coefficient correlation, the rank correlation of the marks obtained by 10 students in 2 particular subjects was found to be 0.5. Later on it was found that one of the
वन ऑफ द डिफरेंसेस ऑफ द रैंक्स ऑफ अ स्टूडेंट वॉज 7 बट इट वॉज टेकन एज 3। 7 थे, एक स्टूडेंट का रैंक 7 था बट हमने लिख दिया है 3। फाइंड द करेक्टेड वैल्यू ऑफ द कोरिलेशन कोएफिशिएंट। Now see here, first of all n is equals to 8 is given in the sum, r is equals to 0.5 is given in the sum, right? Then after for true difference that is 7 and false difference that is 3। तो अभी क्या करें, रैंक कोरिलेशन है तो पहले फर्स्ट ऑफ ऑल वी अप्लाई फॉर्मूला ऑफ रैंक कोरिलेशन, r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n in bracket n square minus 1, r that is 0.5, 6 sigma d square, 10 in bracket 100 minus 1, राइट। तो अभी हम ये इसका सिंप्लीफाई तो करना पड़ेगा, तो हम ये पूरा जो माइनस है माइनस इसको हम ये साइड ले लेंगे, 0.5 को ये साइड ले लेंगे, तो ये 90 इंटू 10 कम्स 990, तो मैंने लिख दिया इधर 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन 990 इज इक्वल्स टू 1 माइनस 0.5, राइट। अभी ये 990 ये साइड और ये 6 डिवीजन में ये किया तो सिग्मा डी स्क्वायर आ गया 82.5। दिस इज़ रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर, वाई बिकॉज हमने 3 की जगह पे 7 ले लिया है। अभी करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर फाइंड करें तो ये रॉन्ग सिग्मा डी स्क्वायर माइनस फॉल्ट डी स्क्वायर प्लस ट्रू डी स्क्वायर, ये फॉर्मूला है। तो 82.5 माइनस 3 स्क्वायर प्लस 7 स्क्वायर, तो सिंप्लीफाई किया तो 122 पॉइंट आया, ये करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर। सो नाउ वी कैन फाइंड आउट करेक्टेड रैंक कोरिलेशन, राइट। r इज इक्वल्स टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर अपॉन n इन ब्रैकेट n स्क्वायर माइनस 1, तो 122.5 करेक्टेड सिग्मा डी स्क्वायर आ गया। n इज इक्वल्स टू 10, उसमें कोई चेंज नहीं, सिंप्लीफाई किया तो r इज इक्वल्स टू 0.26 आया, राइट। दिस इज अवर 3 मार्क्स सम, राइट। सो हियर कार्ल पियर्सन एंड रैंक कोरिलेशन 2 methods are over. Tomorrow we will see that scatter diagram. Scatter diagram वो सिर्फ ओरली ही देखना है बिकॉज उसके कोई भी सम्स एग्ज़ाम में आते नहीं है, राइट। सो यार टुडे हैव यू सीन टुडेज होमवर्क, दैट सम नंबर 2, exercise 2.3 sum number 2, then sum number 4, sum number 6। 2.3 में से these 3 sums are in homework, right? Okay.